Now, Chairman Extraordinary Sri Nilmani Dhar will take the spotlight, igniting the flame of inspiration that will illuminate the path of creativity. May I like to invite Sir Nilmani Dhar to come over here and take your time. Good morning to all of you and namaskar. So first of all, I would like to welcome today's chief guest, Sri Gokar Basar, Honorable MLA. Same time, I would like to welcome our today's guest of honor, Sri Gomar Basar, Assistant Registrar RGU. I would like to welcome our Superintendent of Police, Jambe sir. At the same time, I would like to welcome our DDSC sir and the retired Deputy Commissioner, Sri Hengo Basar, along with our most respected Migori Basar, and all the dignified principals, headmasters, teacher in charge, escorts, students, all of you. So here, first of all, our Lomri sir highlighted few things about the main aim and objective of this inter-school literary competition. So, at the same time, I would like to add few points here, what Lomri sir also say. Now, very frankly, we had seen the development of sports and cultural activities in our Leparada district. It was going so fast, so rapidly. Time to time, maybe through the media or any other source, we will know that our, suppose, Taekwondo won in the state level, boxing won in the national level. So, which gives us very proud, means we feel very proud at the moment. So, what we had found that sports, it is now in a high peak. Cultural activities also, it's in a very high peak. So what we are lagging behind? We are lagging behind in these literary activities. So we decided a group in led by our Lomri sir. We sat together, and here it's not a question of government and private schools. We have made jointly a society that's named Literary Society Leparada. And the main motive behind is to uplift the talent, hidden talent among the students. And some students have some stage fear. So that we have to remove from them. Now, in this literary society, this is the first ever, and this is not the last. And this is not a once in a year. This literary society is meant for different varieties of events which comes in literary. So, after this competition, we will go for the higher secondary level. This is up to primary level. And after that, we will plan for the secondary level, then higher secondary level. So we have a different categories, we have a different plan to conduct this event. Now, the question is that, why we are very much eager to conduct this? What problem we had seen? Suppose if you will ask a student that what is your aim in life? And he said that I want to become an army officer. Okay, well, good. But it is merely his dream. He don't know about anything. He is waiting for his graduation, and after graduation he will go for army for the recruitment in the army or any other paramilitary. But what we notice that, now see, if we have a very good group of literary society, definitely. Now example like Sainik School, Rashtriya Military School, Rashtriya Army School, so many different types of competitive exams are there. And our students, our boys, girls, they choose after a limited period of time, means after graduation.
सो नाउ सपोज द सैनिक स्कूल, अगर सैनिक स्कूल में उसको जाना है तो ये सोसाइटी आपको पूरा गाइडलाइंस देगा। आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो ये मतलब नहीं है कि दैट आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपको बनना है। आप चूज अभी से कर सकता है, वो ऑप्शंस आप ढूंढ के रख सकता है। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, आपको क्या गाइडलाइन चाहिए, आपको क्या हेल्प चाहिए, दैट जॉइंटली विद द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, जो हमारे पास इतना एक्सपर्ट्स है, गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपर्ट्स है, हमारा प्राइवेट स्कूल्स में इतना एक्सपर्ट्स जो है, उनका हेल्प लेके हम लोग उनको काउंसलिंग करके मटेरियल को प्रोवाइड करके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर सकता है। आज पेरेंट्स, अगर हम लोग ने सपोज आज कोई एक एडवर्टाइज निकला कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है क्लास 6 में, बहुत सारा पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ दिस सैनिक स्कूल, अगर वहाँ जाने से क्या होता है, बच्चा को भी पता नहीं। तो वो हमारा काम है कि उनको इस चीज़ का बारे में अच्छा से बताना। सो वी विल स्टार्ट ए वर्कशॉप फॉर दैट, वी प्लान दैट वी विल स्टार्ट ए वर्कशॉप कि जिसमें हम लोग नॉट ओनली कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ ही कंडक्ट करना है, हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग्स उनको देते जाएगा। और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हमने जो एक एनालिसिस हम सभी मिल के हमने बैठा देखा कि यहाँ में डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, दे विल सेलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल, लेकिन सिंपली यहाँ सेलेक्ट होके स्टेट लेवल जाने के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है जो उनको देना चाहिए। वो इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि यहाँ हम लोग जस्ट अपना स्कूल में कंडक्ट किया, एक सेलेक्ट किया, उसको भेज दिया, लेकिन उसका अंदर में प्रॉब्लम्स क्या है, हाउ ही हैज़ टू स्टैंड इन द स्टेज, हाउ ही हैज़ टू डिलीवर, हाउ हीज वोकेबुलरी उसका कैसा होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, वो वर्कशॉप करके अगर हम लोग यहाँ से उसको तैयार करता है तो जिस तरह स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल आता है, तो लिटरेरी में भी हमको लगता है कि स्टेट लेवल में जाके अच्छा परफॉर्मेंस देके हम लोग वहाँ से भी मेडल ला सकता है। तो आज जो ये हम स्टार्ट किया है, हमारा जो सोसाइटी ने स्टार्ट किया है, यहाँ का जो बेस्ट जो होगा हम लोग उसको स्टेट लेवल के लिए तैयार करेगा। वर्कशॉप वी विल गिव फॉर 1 वीक फॉर 10 डेज, एंड स्टेज में कैसे खड़ा होके किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, वो नॉलेज को हम लोग अपना तरफ से जितना सकेगा उसको शेयर करेगा और उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा। So, few days back, I was also here as in Kala Utsav organized by our DPC office. So, वहाँ हमने जो देखा एक टैलेंट को कला उत्सव में देखा कि बच्चा का अंदर में इतना इनोवेटिव आइडियाज़ है। सपोज एक बच्चा ने एक ड्राइंग बनाया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग व्हाट आई हैड सीन फ्यू डेज बैक हियर एज ए जज। तो उस बच्चा ने एक ड्राइंग बनाया, वो ड्राइंग इतना सुंदर है, लेकिन अगर वो ड्राइंग को वो ये सोच के मान लिया कि दिस इज़ द एंड, सो ही विल नेवर कम्पीट इन द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। सो हमारा ड्यूटी ये बनता है कि उसको और भी पॉलिश करके उसको जो आर्टिस्ट है, जो हमारे पास भी अच्छा आर्टिस्ट जो है, उनको बुला के थोड़ा सा एक वर्कशॉप दे के उसको थोड़ा ट्रेन करके अगर भेजता है तो आई थिंक ही विल अचीव समथिंग। So the main motive behind is to, first of all, कि इनके अंदर लिटरेरी का एक पैदा करना है, इंटरेस्ट को पैदा करना है। अभी बहुत सारा बच्चा ऐसा है कि स्पोर्ट्स बोलने से बहुत इंटरेस्टेड है, कल्चरल में इंटरेस्टेड है, लेकिन लिटरेरी में ही इज़ गुड, वेरी गुड, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको एक सही प्लेटफॉर्म देना है। आज से 1 मंथ पहले एक क्लब है, मेमोरी मैनेजमेंट क्लब। वो क्लब बाहर से आता है, आलो का एक ग्रुप है, दे ओनली कंडक्ट क्विज कंपटीशन। सो 1 month back they have conducted one quiz competition. So yesterday, and they are the part of our this literary society also, and tomorrow they will conduct here also the quiz competition with full equipments और टेक्नोलॉजी के साथ, जो हम लोग स्टेट लेवल में देखता है। तो कल यहाँ भी ये होगा, क्विज कंपटीशन होगा। तो उनसे जब मैंने बात किया तो दे सेड कि सर बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हमने जाके कंडक्ट किया, लेकिन जब बासार में हमने कंडक्ट किया देखा तो चिल्ड्रंस आर वेरी मच टैलेंटेड। सम क्वेश्चंस वी आर सपोज टू क्विट, हम क्विट करना चाहता था कि ये बच्चा नहीं सकेगा, लेकिन उन लोग उसको भी आंसर दिया। दैट मीन्स दे हैव दैट पोटेंशियल। तो अभी हम लोग को उस पोटेंशियल को आगे लेके जाना है। तो ये फीडबैक जब हम लोग को बाहर से मिला तो दैट इज़ आवर
responsibility not only as a organizer, as a teacher, कि हम लोग सब मिलके थोड़ा सा लिटरेरी को आगे बढ़ाना है। सिर्फ स्पोर्ट्स और कल्चरल में ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि यहीं से कल का फ्यूचर IAS है, IPS है, यहीं से कल इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो आज सिर्फ अगर उसको उसका भरोसा में छोड़ देगा तो नहीं होगा। कल हम उसको कम से कम हाउ टू अपियर द वाइवा, कैसे अपियर किया जाता है, किस तरह से बात किया जाता है, क्या पोटेंशियल आपको देना है, अगर वो भी थोड़ा सा कुछ अगर हम उसमें ऐड कर देता है, उसको अगर हेल्प कर सकता है, सो दैट विल बी ए ग्रेट विन फॉर आवर सोसाइटी। एंड हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल MLA as a chairman of this society, कि sir, this is the first time we had conducted with the full blessing of you and many of our the well wishers. So एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हमारे ऑनरेबल MLA से है कि सर प्लीज़ इसको आप कैलेंडर इवेंट में डाल दीजिए, ताकि हम लोग एवरी ईयर विदाउट किसी का ऊपर डिपेंड करके या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रॉब्लम ना होके हम लोग इसको हर साल, जब तक हम लोग यहाँ ये सोसाइटी है, हर साल एक कैलेंडर इवेंट का नाम से इसको आगे लेके जा सके। सो दिस इज़ माई ए हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर ऑनरेबल MLA। एंड द सेम टाइम वन मोर रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू से दैट इफ पॉसिबल सर, वी नीड ए गुड लाइब्रेरी हियर एट बासार। तो लाइब्रेरी का भी एक प्रोविज़न अगर आप हम लोग के लिए कर देता है, जो कॉमन सबके लिए ओपन टू ऑल होगा, जो उस तरह का अगर एक लाइब्रेरी का भी प्रोविज़न अगर हम लोग के लिए आप कर देता है, सो वी विल बी रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो हियर विदाउट टेकिंग टाइम, दो इट्स ए competition moment, so we are going to start the competition. So I think I have taken too much time. With these few words, I would like to wind up my speech here. Thank you and have a good day.